आप में से काफी दोस्तों की ये रिक्वेस्ट थी कि जीएसटी ऑन रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में एक वीडियो लिया जाए। अभी मैं 19 डेज का हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों के लिए एक जीएसटी का कोर्स ले रहा हूँ, जिसमें शुरू से लेके एंड तक जीएसटी पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें जो रियल एस्टेट के सेक्टर के ऊपर का जो पोर्शन है उसको इस वीडियो के फॉर्म में यहाँ पर मैंने अपलोड किया है। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है। जीएसटी आने से पहले क्या प्रोविजन थी, उसके बाद में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या प्रोविजंस आई रियल एस्टेट के बारे में, उसका सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन देने की मैंने कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा। और उन सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो रेगुलरली ये वीडियोस देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जीएसटी टैक्सेशन ऑन रियल एस्टेट सेक्टर्स गाइस। थैंक यू वेरी मच। The taxation of real estate in India पहले से शुरू से कॉम्प्लिकेटेड है। शुरू से इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि बिफोर जीएसटी देयर वाज वैट applicable on real estate, because the concept was there are certain goods which are incorporated in the construction of immovable property. So there was a portion of VAT which was applicable, and as there is an inclusion of services also, so service tax was also applicable. There was a rebate given under service tax for real estate. Now, as far as real estate is concerned, we will call it service related to immovable property. This immovable property word is very important to understand. What is immovable property? In excise, Supreme Court said anything will be considered as immovable if you cannot move it without causing substantial damage to the property. So, if you are unable to move that property or the asset without causing substantial damage to the property, then normally it is considered as immovable property. As far as GST is concerned, for GST we have goods, we have services. Here question is whether immovable property is covered under GST or not. Whether immovable property is covered under GST or not. When we have understood goods, then goods means anything which is movable. Normally the movability was the first criteria, other than money and security, etc. That kind of definition we have verified. हमने ये definition देखी थी कि भाई movability should be there for anything to be called goods. And for services, the normal definition is anything other than goods is service. Now let's understand something about the immovable property, whether immovable property is goods or services or what. Once the immovable property is constructed, when it has become part of the land, that means it is, let's say, a real estate property, we call it, a building, a constructed building, then it is difficult to call it a service. Obviously, it cannot be called goods. Why it cannot be called goods? Because now it cannot move. It is not movable. It is no more movable. Though in construction of this immovable property, movable items are used, like bricks, cement, sand, etc. These are goods which are used for construction of immovable property. So because of this concept, VAT was also applicable earlier and service tax was also applicable. But in VAT and services tax, the input tax credit, all the input tax credit was not available. ITC availment was not possible in case of taxation of immovable properties before GST. Now, what happened in GST? Let's go towards the period after 1st of July 2017, GST implemented. After implementation of GST, we said that if you purchase an immovable property after completion certificate, receipt of completion certificate, then definitely GST cannot be imposed.
Why GST cannot be imposed? Because it is outright sale or purchase of immovable property. If it is sale or purchase of immovable property, GST cannot be imposed. If it is purchased or sold after obtaining completion certificate. Completion certificate means what? Completion certificate means now no more service is required to be provided on this property. Service provision is over. Goods are goods have already become part of the property. So goods becomes now immovable property. So anything which is related to land, normally on that only state government is having right to levy tax. So now immovable property becomes part of that land. So then you lose right to impose GST. How it is explicitly said in GST? It is said like this. Entry number 5 of schedule 3 says that sale of land and sale of building after receipt of completion certificate is neither supply of goods nor supply of service. It is neither supply of goods nor supply of service. So what I'm saying is, once it is sale of land or sale of building after receipt of completion certificate, then it is neither supply of goods nor supply of services as per entry number 5 of schedule 3. That means no GST can be imposed. This is what we have understood. But question remains, whenever I am purchasing. So what I was saying is about after implementation of GST, entry number 5 of schedule 3 says that sale of land and sale of building after receipt of completion certificate cannot be taxed under GST. It is neither supply of goods nor supply of service. One more thing was there in a BSNL case, BSNL in case of service tax. Service tax on, yes, case is waiting. If I okay, done. Service tax on immovable properties constitutional validity was challenged. That you cannot impose service tax on immovable property. Service tax cannot be imposed here. It is violating the powers given to the union government under entry number 97 of list 1. Now Supreme Court said service tax on construction is not a tax on land. It is a tax on services provided on land. Very interesting observation by Supreme Court. It said it is not a tax on land. It is a tax on services provided on land. So the constitutional validity of service tax on construction of immovable property was upheld by Supreme Court in this case of BSNL. Now, let's go towards again GST, because the same ratio applies in GST also. In GST, what happened? Once GST came, they said that the rate of GST on construction will be 12% if value of land is also included in the document. And if land's value is not included, then 18%. This was the rate they decided. This 12% will become 8% in case of affordable housing projects. But they said that you can take now ITC, input tax credit can be taken by the developer or the cements used and whatever other material he is using or whatever services he is using. On everything the input tax credit can be used. This is what the situation was on 1st of July 2017 when GST came into picture. Afterwards, what happened? Builders or the developer said to customers, see, earlier service tax was lesser. Now GST is high as 12%. So that's why the price of the immovable property needs to be increased. Prices should be increased. Now government argued
that the prices should not be increased because though the rate has been increased to 12%, earlier under service tax there was 70% rebate, so approximately 4.5% or something was the rate of service tax. It suddenly became 12%, but under service tax ITC was not allowed. Now you are given ITC also, so you cannot charge 12% from customers. Whatever is the Yes. benefit that you are getting by way of utilization of input tax credit, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो भी आपका बेनिफिट है दैट शुड बी पास्ड ऑन टू कस्टमर्स बाय वे ऑफ रिडक्शन इन द जीएसटी. सो बिल्डर आपको ये नहीं बोल सकता कि 12% का जीएसटी का रेट है. व्हाट शुड हैपन इज he need to charge 12% minus whatever is the ITC he is getting on the inputs and input services जो उसको पहले नहीं मिल रही थी. वो जो बेनिफिट उसे मिला that should be passed on to the customer. So that is an anti-profiteering clause also. There is one anti-profiteering clause also. Anti-profiteering clause says कि भाई आपको पुराने टैक्सेशन लॉ में, पुराना टैक्सेशन लॉ मतलब जीएसटी से पहले जो भी था, वैट था, सर्विस टैक्स था, जो भी था, एक्साइज था, उस पे जब आप थे तब किसी चीज की आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही थी. और अब नए टैक्सेशन में जीएसटी में आपको उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रही है, तो वो बेनिफिट आप अपने पास नहीं रख सकते. इट मस्ट बी पास्ड ऑन टू कस्टमर. दैट इज एन एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज कि आप गवर्नमेंट का कोई लॉ बदल गया उसकी वजह से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते. इट मस्ट बी पास्ड ऑन टू द एंड कस्टमर. दिस वाज द सिचुएशन. बट द प्रॉब्लम हियर वाज, मान लीजिए कि मेरा कोई प्रोजेक्ट 2012-13 में है, समझना आप इसको अच्छे तरीके से. तब मैंने एक फ्लैट का रेट रखा था 60 लाख रुपीस inclusive of GST or service tax, whatever was the case at that particular time. Now I am in 17-18. इसी किस्म का सेम फ्लैट सेम एरिया I am selling for 75 lakhs rupees inclusive of GST, taxation, etc. Right? Now the price is increased here. Here there are many factors. Price increase whatever is there, out of that how much is due to GST and how much is due to normal escalation of price of input and input services. वो तो बोलेगा कि यार ये इंक्रीज किया, उसमें सिर्फ जीएसटी का पोर्शन नहीं है, मेरा लैंड जो लैंड है वो भी उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसका कॉस्ट मुझे ज्यादा पड़ रहा है अभी पुराने ईयर के कंपैरिजन में. जो सीमेंट है, जो सैंड है, ब्रिक्स है, सबके रेट बढ़ गए, लेबर भी महंगी हो गई है, तो दैट्स व्हाई इट हैज बीन इंक्रीज्ड. और इसके अंदर जो भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रही है उतना, उसका बेनिफिट कितना और सामने प्राइस एस्केलेशन का लॉस कितना, दोनों को सेट ऑफ करूं तब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल मुझे कितना बेनिफिट मिला है और कितना मुझे पास ऑन करना है कस्टमर को. वेरी 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 डिफिकल्ट कैलकुलेशन. ये जो कैलकुलेशन करना है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सब्जेक्टिव है. यहाँ पर दो ही चीज हो सकती है. नंबर वन, या तो बिल्डर को लॉस जाए बड़ा, या तो फिर कस्टमर को लॉस जाए. तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था. डिपार्टमेंट के पास एक बहुत ही बड़ी चीज आ गई कि भाई जहां जहां पर भी प्राइस इंक्रीज हुई है वहां वहां पर डिपार्टमेंट बिल्डर को जाके बोल सकते कि आपने जो आईटीसी है उसका बेनिफिट पास ऑन नहीं किया कस्टमर को. फॉर दैट वेरिफिकेशन वी नीड टू वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग कि भाई ब्रिक्स का प्राइस कितना बढ़ा है, सीमेंट का प्राइस कितना बढ़ा है, उसमें आईटी से कितनी मिल रही है, पहले कितनी नहीं मिलती थी. एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड, एनालाइज्ड, एंड ओनली देन आफ्टर we can come to a conclusion कि this much is the amount of benefit which is required to be passed on to the customer. इसका एंड रिजल्ट एक ही चीज आ सकती है और वो है बहुत बड़े लिटिगेशंस. डिपार्टमेंट बोलेगा कि आपने पूरा पास ऑन नहीं किया है, कस्टमर भी बोलेंगे कि हमको बेनिफिट आपने पास ऑन नहीं किया है, डेवलपर जो बिल्डर होगा वो बोलेगा कि भाई इतना बेनिफिट मिला ही नहीं है, मैं कैसे पास ऑन करूं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही सब्जेक्टिव था. तो इन सारी चीजों से निकलने के लिए ऑन 31st of March 2019 this real estate taxation under GST went into a complete change. यहां पर इन लोगों ने बोला कि ये सारी चीजें ही छोड़ दो, हम लोग कुछ नया ही करते हैं, बिकॉज दे वांट टू वेरीफाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर. कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही लगा गवर्नमेंट को कि कस्टमर पहले बहुत कम टैक्स भरते थे, अब 12% का टैक्स
या तो फिर 8% का टैक्स उनको अफोर्डेबल है तो 8% का टैक्स भरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट जो है, फ्लैट्स है, रेसिडेंशियल यूनिट्स जो है वो महंगे हो रहे हैं या तो महंगे लग रहे हैं। कस्टमर्स में और इंडस्ट्री में और हर जगह पर एक ऐसा परसेप्शन बनने लगा कि जीएसटी इंपोज होने की वजह से रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ गए हैं, हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, रेसिडेंशियल यूनिट को अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी हालत हुई है, जीएसटी बहुत बुरा है कस्टमर के लिए, ऐसा एक परसेप्शन बनने लगा। तो इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए 31 मार्च 19 से एक नई स्कीम रियल एस्टेट में इंप्लीमेंट हुई। अब जो परसेप्शन था वो ज्यादा डैमेजिंग था रेसिडेंशियल कस्टमर्स के लिए, जिनको रेसिडेंशियल यूनिट्स परचेस करना है, तो उन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 31 मार्च 19 मतलब 1 अप्रैल 2019 से ये एप्लीकेबल हुआ। वन इज कॉमर्शियल एंड सेकेंड इज रेसिडेंशियल। कॉमर्शियल जो था उसमें द थिंग्स वेयर कंटिन्यू टू बी एज इट इज, 12% का जीएसटी का रेट, आईटीसी अलाउड। इसको अच्छे से समझना आप लोग। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है तो 12% का जीएसटी का रेट लगेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बिल्डर है वो ले सकता है सारी चीजों की, जो भी इनपुट से इनपुट सर्विसेज मिल रही है सर्च हर चीज की उसको आईटीसी मिलेगी, एक्सेप्ट दोज विच आर ब्लॉक्ड अंडर 17 सबसेक्शन 5। रेसिडेंशियल जो है उसमें दो पार्ट्स कर दिए गए, एक है अफोर्डेबल और दूसरा है अदर्स। अफोर्डेबल जो है उसमें रेट ऑफ जीएसटी कर दिया गया 1% और अदर्स में कर दिया गया 5%। बट साथ में कंडीशन यहां पर इंपोज हुई, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एनीथिंग। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात मत कीजिए, किसी भी चीज की इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, अब यहां पर ये जब हुआ चेंज 31 मार्च 2019 से, तब से लेके जून जुलाई तक मेरे पास इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कॉल आए थे, इतने सारे जो डेवलपर्स थे उन्होंने ओपिनियन लिया था और अब सबका अलग अलग किस्म का परसेप्शन था इसके बारे में। इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं हम लोग। गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि ये 12% हमने कर दिया 1% और 5%, हर जगह पर मरता कस्टमर ही है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। जीएसटी आया तब भी उसको मरना था और ये चेंज हुआ तब भी उसी की हालत खराब होने वाली थी। रीजन क्या है? जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तब डेवलपर्स ने, बिल्डर्स ने बोला, कहां तक ये सही है, ये सब्जेक्टिव मैटर है, डिस्कशन का मैटर है, डिबेटेबल मैटर है, कि भाई पहले सर्विस टैक्स कम था अब तो 12% लग रहा है, तो प्राइस तो नेचुरली इंक्रीज होगी ही। जब ये 1% और 5% हो गया तब भी बिल्डर्स ने बोला कि भाई रेट तो बढ़ेंगे ही प्रॉपर्टी के, क्यों? क्योंकि 12% का गवर्नमेंट ने 1% और 5% तो कर दिया, लेकिन हमारी आईटीसी इतनी सारी मिल रही थी वो हमको नहीं मिलेगी, तो हमारे लिए तो ये प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्टली हो गया। ये आर्ग्यूमेंट सही थी, कॉस्टली ही होगा प्रोजेक्ट, अगर ये 1% और 5% कर दिया और आईटीसी नहीं मिली तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट कॉस्टली होने वाला है। क्यों कॉस्टली होने वाला है मैं भी अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा वो भी। बट कस्टमर को कोई बेनिफिट मिला नहीं इसकी वजह से। काफी झगड़े हुए कस्टमर्स के और डेवलपर्स के बीच में, क्योंकि कस्टमर्स होते ही ऐसे, क्योंकि 31 मार्च 2019 को सबसे बड़ी दिक्कत, जो प्रोजेक्ट कंटिन्यूएशन में था उसमें गवर्नमेंट ने बोला, अभी इसको जरा साइड में रखते हैं, जो कंटिन्यूएशन में था उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। जो प्रोजेक्ट 31 मार्च 2019 को कंटिन्यूएशन में था वहां पर क्या हालत हुई, गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिए कि यू कंटिन्यू विथ ओल्ड स्कीम, मतलब 12% का जीएसटी का जो रेट है वो और आईटीसी लेना कंटिन्यू रखो आप, या तो फिर यू स्विच ओवर टू न्यू स्कीम जिसमें 1% या 5% जो भी है, और आईटीसी आपको लेनी नहीं है तो आईटीसी रिवर्स करो, आप अभी तक जो ली है उसका रिवर्सल करो। और ये रिवर्सल की फॉर्मूला इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाई कि एक चीज की तो श्योरिटी हो ही गई कि अगर कोई पर्सन पुराने में से नए में स्विच ओवर करता है कंटिन्यूएशन वाले प्रोजेक्ट के लिए तो उसका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लिटिगेशन में मैटर्स जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो जिसने भी मुझे पूछा कि हमको क्या करना चाहिए, मैंने सबको यही एडवाइस की थी उस टाइम पे कि यू कंटिन्यू इन द ओल्ड स्कीम।
और ओल्ड स्कीम में कंटिन्यू करने में दिक्कत बहुत बड़ी, क्योंकि हर चीज जो है वो सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ के डिसाइड करते हैं जीएसटी के बारे में। मैं सबको बोलता हूँ कि जीएसटी को ठीक से समझना है तो कभी भी न्यूज़पेपर मत पढ़ो। न्यूज़पेपर में पब्लिश होने लगा कि भाई 12% का रेट जो है अब तो 5% हो गया है फ्लैट्स पे, मतलब कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। जितने भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के बायर होते हैं नॉर्मली जब भी अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, जितने भी बायर्स होते हैं उसमें से मोर देन 90% ऐसे होते हैं कि वो अपनी लाइफ की ज्यादातर सेविंग इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, और लोन भी लेते हैं बड़ी अमाउंट की। तो ये जो 7% का रिडक्शन है उनके लिए बहुत बड़ा था। 7%, उनको दिखा कि भाई न्यूज़पेपर में तो लिखा है कि 7% का रिडक्शन आ गया, तो वो तुरंत पहुंचे अपने बिल्डर्स के पास कि भाई आप तो 12% ले रहे हैं, गवर्नमेंट ने तो अभी 5% कर दिया है, हमको हमारा डिफरेंस का 7% चाहिए, कैसे देंगे आप। मुझे याद है कि इतने सारे क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का भी कॉल आया था उस टाइम पे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे जिनके क्लाइंट्स बिल्डर थे उनका भी कॉल आया था कि कस्टमर नहीं मान रहे हैं, हम क्या करें, हमको तो पूरा नहीं कंटिन्यू रखना है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर बोल रहे हैं कि 5% ही लो आप हमारे पास से। तो कस्टमर को ये एक्सप्लेन करना कि 12% 5% हो गए लेकिन हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला है बिकॉज नाउ वी आर नॉट गेटिंग आईटीसी, वो भी उस टाइम पे बहुत बड़ी दिक्कत थी। एज फार एज द एकेडमिक थिंग्स आर कंसर्न, हमको इतना समझना है कि जो भी 31 मार्च 19 को प्रोजेक्ट कंटिन्यूएशन में थे उनके पास दो ऑप्शन थे, 12% वाला कंटिन्यू करो या तो फिर 5% में जाओ, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करो, आईटीसी को रिवर्स करो, या तो 12% वाला जो भी आपका कंटिन्यूएशन में था आईटीसी लेते रहो, प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर दो। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2019 के बाद शुरू हो रहा है और वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं 12% जीएसटी कलेक्ट करूंगा और आईटीसी भी लूंगा। दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, आपको जाना है 5%, और अगर अफोर्डेबल है तो 1%, नो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट यू कैन नॉट टेक। दिस इज व्हाट द चेंज मेड फॉर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। अगर ये इतना सिंपल होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, और इसमें काफी और चीजें हैं। जब भी चीजों को इजी करने की कोशिश की गई है जीएसटी में तब तब वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनी है, ऐसी हिस्ट्री है इस टैक्सेशन की। जब भी ये प्रयास हुआ है कि इसको हम लोग सिंपल करें तब तब ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। सिर्फ अगर गवर्नमेंट ने इतना बोला होता कि अब अफोर्डेबल के लिए 1% और अदर देन अफोर्डेबल के लिए 5% और नो आईटीसी, वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो चलो ठीक है, सीए का काम बहुत रिड्यूस हो गया। लेकिन सीए का काम कभी रिड्यूस होता नहीं है जब भी अमेंडमेंट आते हैं। एफोर्डेबल में किसको बोलूंगा, सबसे पहले वो देखते हैं। एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें कारपेट एरिया जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए 60 स्क्वायर मीटर्स से ज्यादा ना हो, और अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज 90 स्क्वायर मीटर से ज्यादा ना हो, और ग्रॉस अमाउंट चार्ज फ्रॉम द कस्टमर शुड नॉट एक्सीड 45 लैक्स। 45 लैक्स से ज्यादा का उसका ग्रॉस अमाउंट चार्ज नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग अफोर्डेबल बोलेंगे और 1% में चला जाएगा। इसमें से कोई भी कंडीशन वायोलेट हुई देन इट इज नॉट कॉल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो अदर देन अफोर्डेबल में जाएगा और 5% रेट विल बी एप्लीकेबल, 5% का रेट वहां पर एप्लीकेबल होगा। अब ये जो कारपेट एरिया की जो बात है 60 स्क्वायर मीटर वाली और 90 स्क्वायर मीटर वाली, अच्छा यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोग कुछ ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं? No, no, लिंक ठीक है understood. हमारी? Yes, yes. ओके ओके। अब ये जो 60 स्क्वायर मीटर और 90 स्क्वायर मीटर वाला जो क्राइटेरिया है दैट विल बी अप्लाइड ऑन रेसिडेंशियल यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं फ्लैट्स की स्कीम है तो एक फ्लैट, बंगलो की स्कीम है तो एक बंगलो, जो भी स्कीम है जहां पर एक यूनिट जो है उसका कारपेट एरिया हमको देखना है, ठीक है। अब कई स्कीम ऐसी होती है कि जहां पर रेसिडेंशियल भी होता है प्लस कॉमर्शियल भी होता है, तो उसमें मैं 12% वाले में जाऊंगा या तो फिर 5% 1% वाले में जाएंगे, किस में जाएंगे?
तो उसके अंदर बोला गया कि जो कॉमर्शियल पोर्शन है आपका पूरे प्रोजेक्ट में, उसका कारपेट एरिया टोटल प्रोजेक्ट के कारपेट एरिया से अगर 15% से ज्यादा नहीं है, then even if there is a commercial property involved in the project, it will be called residential project. अच्छे से समझना इसको कि जो कॉमर्शियल वाला, कई बार होते हैं फ्लैट्स की ऐसी स्कीम की जहां पर नीचे शॉप्स होती है, ऊपर फ्लैट्स होते हैं, तो अगर पूरे प्रोजेक्ट के कारपेट एरिया में 15% से ज्यादा कारपेट एरिया अगर ये कॉमर्शियल वाले का नहीं है, तो उसको हम लोग रेसिडेंशियल ही मानेंगे, पूरी स्कीम को हम लोग रेसिडेंशियल ही मानेंगे और ये वाला क्राइटेरिया ही एप्लीकेबल होगा। अगर ये ब्रीच हुआ 15% वाला तो रेसिडेंशियल नहीं मान सकते। दिस इज व्हाट हैज बीन डिफाइंड। जैसे मैंने आपको बताया कि इतना सिंपल होता कि 5% और 1% भर दीजिए और आईटी से किसी भी चीज की मत लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसके साथ गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे, अच्छा जब भी इसका डिस्कशन हुआ था तो द मैटर वाज रिफर्ड टू ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इसको जब कम करना था तब, तो वहां पर एक दिक्कत ऐसी आई थी, सबने बोला था कि ये मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जो परचेज है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो पूरा एक ब्लैक की इकोनॉमी जैसी चीजें हैं, उसको एनकरेजमेंट मिलेगा, ऐसा एक आर्ग्यूमेंट की गई थी। तो इसी वजह से ये जो नो आईटीसी और 5% 1% वाला जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को दिक्कत लग रही थी उस टाइम पे। उसका सॉल्यूशन क्या निकाला इन्होंने? उसका सॉल्यूशन ऐसा निकाला कि जिसकी वजह से बिल्डर्स की और सीए के दोनों का हेडेक बहुत बढ़ गया। उन्होंने बोला कि अगर आप सीमेंट या तो फिर कैपिटल गुड्स अगर परचेज करते हैं तो इट मस्ट बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, जिसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जीएसटी का, उसके पास से परचेज करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं आप और अनरजिस्टर्ड के पास से परचेज करते हैं तो आरसीएम तो में आपको आपको जीएसटी टैक्स भरना पड़ेगा। सीमेंट तो 28% से टैक्सेबल है, मतलब कि सीमेंट जो है वो मुझे, अब समझना इसको कि पहले सीमेंट पे 28% जीएसटी जो था उसकी पूरी क्रेडिट मुझे मिलती थी। अब दिक्कत यह है कि मैं अनरजिस्टर्ड के पास से सीमेंट परचेज नहीं कर सकता। दूसरा, अगर किया तो 28% मुझे आरसीएम में पे करना पड़ेगा और इसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी। क्रेडिट लेने का तो सवाल ही नहीं है। दैट्स व्हाई हम लोगों ने कल बात की थी कि आरसीएम का पेमेंट और क्रेडिट दोनों अलग अलग मैकेनिज्म है। यस और नो? ये समझ में आता है यस आपको? आरसीएम तो यस भरो लेकिन क्रेडिट नहीं मिलेगी आपको। बिल्डर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत कि अगर मैंने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से कैपिटल गुड्स या तो सीमेंट परचेज किया तो आरसीएम में मुझे उसके ऊपर जो भी जीएसटी होगा वो पे करना पड़ेगा। इतना नहीं, सिर्फ सीमेंट और कैपिटल गुड्स की बात नहीं है, अदर देन दैट, अदर देन सीमेंट और कैपिटल गुड्स और भी चीजें हैं, डीजल वगैरह जो भी वो यूज करते हैं जो जीएसटी में से बाहर है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा जो भी इनपुट और इनपुट सर्विसेज आप ले रहे हैं वो मिनिमम 80% आपको रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड पर्सन से लेनी पड़ेगी, मिनिमम 80%। अगर ये 80% का क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं होता है तो जो शॉर्टफॉल आएगा उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा? आरसीएम में आपको पे करना पड़ेगा 18% से, 18% से आपको पे करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गई अब तो। ये जो कैलकुलेशन करना है वो आपको हर महीने कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इस महीने का मेरा जो इनपुट है, इनपुट सर्विस है, उसमें 80% रजिस्टर्ड के पास है या नहीं है। ठीक है। दूसरा, अच्छा ये 80% वाली चीज सबको समझ में आ गई? यस एग्जांपल लेते हैं अभी हम लोग इसका, पूरा कैलकुलेशन कैसे होगा वो। उसके बाद जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज आप ले रहे हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज नॉर्मली चार्जेबल एट 18%। यहां पर ऐसा बोला कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अगर आप लोग ले रहे हैं उसमें 50% या उससे ज्यादा एफोर्डेबल हाउसिंग है, एफोर्डेबल हाउसेस। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हो सकता है कि जिसमें कुछ यूनिट एफोर्डेबल है, कुछ यूनिट एफोर्डेबल नहीं है, ऐसे भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 50% या उससे ज्यादा अगर एफोर्डेबल है तो 12% का ही जीएसटी लगेगा।
इसके ऊपर जो इनपुट वर्क कॉन्ट्रैक्ट है आपका उसके ऊपर। मैं इनपुट के ऊपर आ गए, अभी आउटपुट की बात नहीं है, ठीक है। और जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देने वाला पर्सन है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बिल्डर को सर्विस देता है, उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बिल्डर के पास से कि ये 50% या उससे ज्यादा अफोर्डेबल है, तो सिर्फ 12% ही चार्ज करो। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज गवर्नमेंट ने ऐसी बोली है कि ये सर्टिफिकेट लेते ही जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर है उसकी ड्यूटी खत्म। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने तक ऐसा पता चला कि 50% से ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है, 50% से कम हो गया अफोर्डेबल वाले यूनिट। तो उस सिचुएशन में जो डिफरेंस है 18% माइनस 12%, 6% वाला, वो बिल्डर को पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। इट कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम द वर्क कॉन्ट्रैक्टर। Now, ये work बिल्डर को contracts. आरसीएम में पे करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड। इस तरीके की चीज वहां पर प्रोवाइड की गई है। तो इतनी चीजें मुझे देखनी पड़ेगी कि मेरे क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती। एक तो सबसे बड़ी चीज सीमेंट के ऊपर तो आपको भरना ही है। कैपिटल गुड्स जो यूज करेंगे, कोई भी मशीनरी लाया है वहां पर उसके ऊपर जीएसटी भरना ही है। दूसरी चीज है कि अदर देन दैट जो भी इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज है उसमें 80% वाला क्राइटेरिया, इसका एग्जांपल देखते हैं अभी हम लोग। 80% वाला जो क्राइटेरिया है उसका, वो मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी। अब काफी इसके बाद में क्वेश्चंस आए। पहला क्वेश्चन तो ये आया कि अगर मैंने कोई इनपुट या इनपुट सर्विसेज ऐसे पर्सन के पास से ली है जो कंपोजिशन स्कीम में है, अब ये कंपोजिशन वाला तो टैक्स लगा नहीं सकता मेरे ऊपर, उसको Yes. रजिस्टर्ड गिनेंगे कि अनरजिस्टर्ड के पास से लिया है ऐसा गिनेंगे। देन दे आर सेइंग इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनपुट और इनपुट सर्विस एक्वायर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो Hmm. उसमें आपको दिक्कत नहीं, रजिस्टर्ड गिना जाएगा उसको। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ऐसी बताई गई कि अगर एग्जम्प्ट है कोई चीज, एग्जम्प्ट वाली चीज आपने परचेस की, समझना इसको, तो उसमें माना जाएगा कि इट इज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो वो 80% वाला क्राइटेरिया मुझे हिट कर जाएगा वहां पर। दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम विल हैपन, डेफिनेटली इट विल हैपन। अब ये 80% वाला जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये जब आया उसके बाद में मैंने एक आर्टिकल लिखा था एक मैगजीन के लिए, उसका राइटअप है मेरे पास, टैक्सेशन ऑफ रियल एस्टेट। ये मैं आपको भेज दूंगा, पूरा राइटअप है वो भी भेज दूंगा। इसमें सारी डेफिनेशंस के साथ पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है कि किस तरीके से होगा, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एकदम। और इसका एक एग्जांपल ही अभी देखना है, क्योंकि इसमें जो लिखा है उसमें से ज्यादातर चीजें तो मैंने आपको बता दी अभी। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल है। लेट्स से मिस्टर ए इज अ बिल्डर। अच्छा, सबको ये दिख रहा है स्क्रीन एग्जांपल? Yes. ओके। Yes. Yes. Who is a builder has procured total input and input service worth rupees 10,10,000 during the month of June 2020। 10,10,800 रुपए का उसने टोटल इनपुट और इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर किया है। आउट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ रुपीज 10,800 इज प्रोक्योरमेंट ऑफ हाई स्पीड डीजल ऑयल। अब ये हाई स्पीड डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी कुछ चीजें हैं कि जिसको तो उन लोगों ने बाहर ही रखा है कि इसमें कोई क्राइटेरिया आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। He has purchased cement worth rupees 3 lakh, out of which 2 lakh is from unregistered person। अच्छा, इसको पहले आप लोग मुझे इस चीज का आंसर दे दो कि 3 लाख का सीमेंट उसने परचेस किया है, उसमें से 2 लाख रजिस्टर्ड के पास है, तो मतलब 1 लाख में तो उसको आरसीएम भरना ही पड़ेगा, सीमेंट है इसलिए। Yes. सीधा 28,000। ओके। आउट ऑफ बैलेंस 7 लाख। अब 7 लाख का बैलेंस कहां से आया? 10,80,000 था, उसमें से 10,800 तो डीजल वाली चीज तो निकाल ही देंगे, तो 10 लाख बचा। 10 लाख में से 3 लाख सीमेंट था, तो सीमेंट के अलावा क्या क्या है उसके पास? 7 लाख रुपए का जो चीज है उसमें से 4 लाख के प्रोक्यूरमेंट इज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये 7 लाख में से 4 लाख अनरजिस्टर्ड के पास है, मतलब 3 लाख रजिस्टर्ड के पास है। तो अब ये 80% वाला क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए उसको कितना जीएसटी आरसीएम में भरना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन हर महीने करना है। ऐसे करना है, देखिए मैंने बताया यहाँ पर। फर्स्ट, Mr. A needs to pay 28% GST on cement purchase from unregistered। वो तो ठीक है, अनरजिस्टर्ड वाली बात तो हो गई। यहाँ पर टोटल प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं।
टोटल प्रोक्योरमेंट इज 10,80,000, उसमें से डीजल वाली चीज को निकाल ही दो तो 10 लाख रुपए का मेरा ग्रॉस अमाउंट आया। अब ये ग्रॉस अमाउंट का मुझे 80% करना है, 10 लाख का 80%, मतलब कितना हुआ, 8 लाख रुपए रजिस्टर्ड के पास आना चाहिए। उसमें जो सीमेंट मैंने यूज किया है, जस्ट अंडरस्टैंड हियर, 3 लाख रुपीस का, उसके ऊपर तो मैंने जीएसटी भर दिया, मतलब वो निकल जाएगा। और 7 लाख में से 4 लाख मतलब और 3 लाख रुपए का मेरा रजिस्टर्ड के पास था, वो भी निकल जाएगा। इन शॉर्ट ये 6 लाख रुपए जो है वो मेरे 8 लाख का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, मतलब 2 लाख का शॉर्टफॉल है। ये 2 लाख के ऊपर 18% आई एम रिक्वायर्ड टू पे व्हाट, जीएसटी, टू कंप्लीट दिस 80% क्राइटेरिया। इसका सीधा साधा मतलब ऐसे होता है, इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहले आप ग्रॉस अपना प्रोक्योरमेंट ले लीजिए, उसमें से जो हाई स्पीड डीजल है या इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसी चीजें उनको निकाल दीजिए, वो किसी काम की नहीं है। अब जो फिगर आई उसके ऊपर सीधा 80% अप्लाई कर दीजिए, इतना आपका रजिस्टर्ड के पास से होना चाहिए, सीमेंट विमेंट सब मिला के। सीमेंट तो नेचुरली 100% ही होना चाहिए। तो जो सीमेंट वगैरह आपने परचेज किया है, सीमेंट या कैपिटल गुड्स, जिसके ऊपर 100% आपने आरसीएम भी पे कर दिया, तो ये निकाल दीजिए। बाद में जो चीज बची उसके ऊपर आपको कितना रेट अप्लाई करना है, 18%। You are required to apply 18% rate. Is it clear up to this stage? यहां तक ये चीजें क्लियर है? Yes. ऐसे हर एक बिल्डर के केस में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक चीज मैंने यहां पर ली है अबाउट द एफएसआई और टीडीआर, दिस ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट एटसेट्रा, लॉन्ग टर्म लीज का जो पेमेंट है उसकी बात की है यहाँ पर, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होगा एग्जैक्टली इसमें। कई बार डेवलपमेंट राइट का मतलब क्या होता है कि किसी की लैंड है, उसने डेवलपमेंट राइट दे दिया कि भाई आप डेवलप करो, इसके सामने मुझे पैसा दे दो, मैं राइट देता हूं उसके सामने, या तो फिर मुझे फ्लैट दे दो, ऐसा कुछ करो, जो भी दो आप मुझे। अब इसमें क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे ट्रांजेक्शन या तो लॉन्ग टर्म लीज है 30 साल से ज्यादा वाली, उसमें भी हो सकता है कि लैंड मेरी है, 30 साल से ज्यादा के लिए मैंने किसी बिल्डर को दिया और बोला कि 4 फ्लैट मुझे दे देना। अगर कॉमर्शियल है तो ये जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो टैक्सेबल ही हो जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही, 18% वाला जो नॉर्मल रेट है दैट विल बी एप्लीकेबल। ये क्यों टैक्सेबल किया है, क्योंकि आईटीसी अवेलेबल है। भाई मेहुल भाई, ये कॉमर्शियल वाले में उन्होंने क्यों टैक्सेबल रखा है इसको, बिकॉज आईटीसी इज अवेलेबल, क्योंकि 12% आप कस्टमर के पास से कलेक्ट करेंगे, इसके सामने आईटीसी आप यूज कर लेंगे। रेसिडेंशियल है तो इंटरेस्टिंग, तो ये एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर आपको जीएसटी भरना नहीं है। लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आते टाइम पे आपके सारे फ्लैट्स बुक नहीं हुए हैं, तो प्रपोर्शनेट जितने फ्लैट आपके बुक नहीं हुए हैं उसके मुताबिक आपका जो ये टीडीआर या तो एफएसआई या तो फिर आपका लॉन्ग टर्म लीज है, उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 18% के रेट से। क्योंकि जो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बुक होंगे आपके फ्लैट, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो दैट्स व्हाई दिस एग्जम्पशन कैन नॉट बी गिवन, तो इसमें प्रोपोर्शनेट आपको करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड, टीडीआर और एफएसआई वाली जो बात है उसके अंदर इस तरीके से करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि इतना एक्सप्लेन करने के बाद काफी क्वेश्चंस होंगे आपके। तो रियल एस्टेट के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर कंपोजिशन स्कीम को तो फटाफट देख ही सकता है, कंपोजिशन स्कीम कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। तो लेट्स टेक फॉर 15-20 मिनट्स और व्हाटएवर इज द टाइम, वी विल टेक द क्वेश्चंस फर्स्ट, उसके बाद कंपोजिशन में जाते हैं।